Good morning, students. Myself Suren sir, as a physics teacher. Today I would like to say something about very important topic of physics, standard 12, chapter number 1. This topic name is electric flux. So today I will tell you what is electric flux, what is unit of this, okay, what is definition of that. तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ेंगे आज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज लिंक विद द एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू द सरफेस। वन टाइम मोर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट द पास थ्रू द सरफेस। कहने का ये मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस से डिपेंड करता है, और उसको हम आपको बताना चाहते हैं। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड equal to E vector and surface area equal to A. Okay. So what is flux of that? So first draw the figure like as this. Suppose that this is the figure. Here electric field line, one surface are there, perpendicular surface. Suppose that area is here, area equal to A, and then electric field is this. Electric field, uniform electric field, area, electric field direction is that. You can say here this plate, what I took surface area, this is the perpendicular to electric field, but surface A is the parallel to E. What we can say that electric flux phi equal to EA. Okay, means what? Flux is product of electric field and surface area. How we can say is, in very short, if you want to say what is definition of the electric flux, you can say कि electric flux is defined, may be defined as product of magnitude of the electric field and perpendicular to surface area is known as electric flux. इस फार्मूले से हम बता सकते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसकी डिफिनेशन दूसरे वर्ड में बाय फार्मूला। फार्मूले के थ्रू हम कैसे लिख सकते हैं, सी हियर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स may be defined as the product of electric field E and perpendicular to surface area A.
Okay, so in this way you can define that by formula. Equation number 1 is given that E into A mean product of that किसका है, E is the electric field, A is the area of that. So in this way you can define. Suppose that you take the very minute areas, and if you want to find the electric field, तो how we can do. तो यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं. Suppose that दूसरा फिगर यूनिफॉर्म सरफेस एरिया है, E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ किसी तरह से इस तरह से. Suppose that this area what I took, this area A is make theta angle between electric field and A. Suppose that this area is dA. This area is dA between electric field and area have a theta angle. So what we can write? So and suppose that if we want to find the electric flux between this surface area and this particular area, so what we can write? Oh, this formula we can find. So d phi equal to, we can write E vector into dA. Okay, if we want to find the whole flux of this surface, so how we can write? We will take integration d phi equal to integration of E vector into dA. So this value will be phi, and place of E vector A have area, suppose that whole area is capital A, so we can write EA EDA dA cos theta. In vector form, if you we write down, so we can write E vector and A vector. So flux equal to E vector into A vector we can write. Okay, so write down this. So this surface, whole surface have a flux, we can get E vector into A vector, and but very minute surface, suppose if we want to find the flux between very dA area, and then this area surface is making the angle between E and dA equal to theta, so we can write like as this EDA, and if we can integrate that, so this we can get. In other words, we can write कि flux equal to is vector, we can remove that, so E A cos theta. This is the standard formula of that equation number. Okay, it's clear. So formula we have got कि flux equal to phi equal to EA cos theta. क्या हमने अभी गेट किया? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टोटल फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा या फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. ये हमारा फार्मूला आ गया. अब इसी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो फिर इसको और शॉर्ट में कैसे बता सकते हैं कि अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या लिखेंगे? टोटल फ्लक्स लिखो, आप लोग भी लिखो. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज electric flux through the surface is may be defined as
इंटीग्रल, यहाँ इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस। ओके, तो इस इक्वेशन के द्वारा हम ये लिख सकते हैं कि टोटल जो फ्लक्स है थ्रू द सरफेस may be defined as the integral surface of electric field over that of surface। ओके, अगर हम इसका यूनिट या फार्मूला निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो फ्लक्स इक्वल टू, अगर हमें लिखना है यूनिट, तो यूनिट ऑफ फ्लक्स इक्वल टू क्या है? ई ए, आपने भी पढ़ा ही। तो E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और A क्या है? एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं? F बाई ए, F बाई क्यू लिखते हैं ना, F बाई क्यू इंटू एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अभी एरिया लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है? फोर्स की, न्यूटन है। और क्यू की क्या है? मतलब चार्ज की क्या होती है? कूलम होती है, और मीटर की स्क्वायर होती है। तो हम इसको अगर हम यूनिट की बात करें तो हम लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू या फिर नीट या फिर जेई में भी पूछे जाते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हमें ध्यान रखना होगा कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होता है। अब इसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहें तो डायमेंशनल फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो नीट और आईआईटी के पार्ट ऑफ वैसे ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट उसके डायमेंशनल फार्मूला। तो अब हम इसके बेसिस पे हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। ओके, रफ कर दें, लिख लिया आप लोगों ने? हैवी रिटर्न, अच्छा ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट, लिख लो। ओके, तो अब हम निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए, क्या है? फाई इक्वल टू है ई ए। ओके, ई क्या है? एफ बाई क्या? क्यू इंटू ए। ओके, अब हमें पता होना चाहिए एफ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mLT⁻²। ठीक है, इट्स ओके। चलो, क्यू का क्या होता है? क्यू का नहीं पता ना, तो करंट का फार्मूला पता है, क्या होता है? Q/T होता है। ठीक है, तो क्यू क्या होता है? IT होगा। अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो करंट का आई किससे करंट होता है, तो करंट के का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ए होगा। टाइम का क्या होता है? टी होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ए क्या है? एरिया है। यहाँ पे अगर ए की बात करें तो एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। उसके लिए एल लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। अब यहाँ पे लिखिए, ये तो हमने फार्मूला लिखा प्लस का। अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखा होता तो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अब हम लिखेंगे एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू क्या है? mLT⁻²। ओके, क्यू की वैल्यू क्या है? 80। और इसका क्या लिखेंगे? एरिया का। कौन बताएगा? एरिया का डायमेंशनल फार्मूला किससे डिनोट करते हैं? एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। और मीटर क्या है? लेंथ स्क्वायर कह सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसको? एम एल एल क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। टी ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये तुम्हारा
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने। डायमेंशनल फार्मूला क्या है इसका, ml³ (10⁻³ और एम्पियर इनवर्स a की पावर -1 या a इनवर्स। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से, राइट डाउन फास्ट। लिख लिया, हैव यू रिटन, राइट डाउन फास्ट, राइट डाउन। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। नीट में और जेई में भी आता है इस तरह के क्वेश्चंस कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वी शुड लर्न ओनली फार्मूला phi equal to EA and substitute these values, you can get the answer. Okay, चलो, तो today I will tell you two condition, special case of electric flux। तो आप लोग एक फिगर छोटा सा बनाना है और इस फार्मूला को हमें यूज करना है। रब कर दें इसको भी, हाँ, हैव यू रिटन दिस? ओके ओके। तो अब हम एक फिगर बनाते हैं और इस फिगर के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको बताना है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, हर एक मोमेंट पे इसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम 3 फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, एक प्लेट है, देख रही है ये प्लेट कैसी है, जो सरफेस एरिया कैसी है, ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E का डायरेक्शन क्या है, इधर है। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया किधर है, अगर ये प्लेट है तो प्लेट तो क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसका सरफेस भी, जो एरिया का सरफेस है, फेस, वो भी तो इधर ही डायरेक्शन में होगा। तो मतलब एरिया भी इधर ही है। जो प्लेट है वो परपेंडिकुलर है, बट उसका सरफेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स क्या होगा इसका, फ्लक्स क्या होता है, EA cos थीटा होता है कि नहीं होता है? ध्यान से सब समझना। अगर हम फिगर नंबर 1 की बात करें, ये 1 है, तो अभी हमने पढ़ा है कि फ्लक्स इक्वल टू EA cos थीटा। तो इसके बीच में थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कौन बताएगा भाई? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, प्लेट की सरफेस की एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 होगा। ऑब्वियसली थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो फ्लक्स क्या लिखेंगे, EA cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, बताओ? cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको क्या लिखना है, EA into 1। तो क्या हो जाएगा फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू EA। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा मुझे। कितना मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। ध्यान रखिए, मैक्सिमम फ्लक्स कब मिलेगा, जब प्लेट जो हमने लिया है, सरफेस जो लिया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन उसका सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा वहां पे। दूसरा मैं एक फिगर बना रहा हूं छोटा सा, ध्यान दीजिए इसमें। ये कोई सरफेस है सर, ठीक है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से सरफेस बनाएंगे। अब इसका सरफेस किधर है, इसका सरफेस ऐसे है। अगर इसका सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई एंगल बनाएगा, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये थीटा एंगल है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, इस फिगर में, फिगर नंबर 2 में क्या होगा, हमें तो वही मिलेगा, हमें पता नहीं 35 से 40 तो क्या लिखेंगे, EA cos थीटा। ये कितना हो सकता है, अगर ये 90 है तो 0 हो सकता है, अगर ये 90 से कम है तो पॉजिटिव होगा, 90 से ज्यादा होगा तो नेगेटिव होगा।
तो इसकी वैल्यू हम E cos थीटा लिख सकते हैं। अब दूसरा मैं एक फिगर बनाता हूँ बहुत छोटा सा, तीसरा फिगर में इसे समझने की कोशिश करिए। एक प्लेट ऐसे ये पैरेलल है, इसे ये प्लेट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है पैरेलल है, लेकिन इसका सरफेस क्या है ऊपर डायरेक्शन में होगा, तो इसकी एरिया का जो सरफेस है वो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इसके आप देख सकते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है थीटा, थीटा इक्वल टू 90 है। तो इस केस में क्या आएगी वैल्यूज बताओ, तो फाई इक्वल टू EA cos थीटा तो फार्मूला होता है EA cos 90 डिग्री, क्या होगा cos 90 वैल्यू क्या होती है नहीं पता, हाँ नहीं मालूम, मालूम है सब बताओ, जीरो ना, तो EA बिंदु जीरो cos 90 वैल्यू जीरो होती है, तो प्लस से हम जीरो। कहने का ये मतलब है अगर सरफेस जो हमारी शीट है उसका सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन दोनों के बीच में अगर 90 होता है तो वहां पे प्लस क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। तो कहने का मतलब है तीन केसेस हम आपको समझाने की कोशिश किए। पहला ये है कि अगर प्लेट का सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है तो मैक्सिमम हमें क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। अगर किसी एंगल पे है सरफेस और उसके बीच में परपेंडिकुलर नहीं है बट उसमें कुछ एंगल्स हैं थीटा, अगर 90 के बिलो होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और 90 से ज्यादा होगा तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है। तीसरा है कि अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों 90 डिग्री में हैं तो इसके बीच में फ्लक्स क्या होगा जीरो आएगा। कहता है इस तरह के केस में हम क्या लिखेंगे, ऐसा फिगर बना के दे दिया गया तो भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसको फिगर को देख के हमें आंसर बताना होता है। इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा आता है। तो ऐसी चीजें जो थोड़ी छोटी चीजें हैं, ऐसा क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आपको नीट की भी एग्जाम देनी है, आईआईटी की भी देनी है, तो अभी से ये छोटे पॉइंट्स अगर क्लियर हो जाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्यों कैसे क्या होता है, तो इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमें तीन चीजें याद रखना, कहें कि अगर हमने ये क्या समझ आया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पहली बात तो ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, क्वांटिटी। ठीक है। दूसरा ये हमने पढ़ा कि अगर प्लेट और सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लेकिन उसकी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है एक दूसरे के पैरेलल है, एंगल बन रहा है वो जीरो है, तो वहां पे मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। सेकंड फिगर से हमें पता चला है कि अगर वो 90 थीटा के वैल्यू 90 से कम है या 90 से ज्यादा है, अगर 90 से कम है E और A के बीच में जो एंगल है वो अगर 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू हमें मिलेगी फ्लक्स की वैल्यू और इससे कम है तो पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन अगर E और A के बीच में जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री होता है तो उस केस में हमें मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। मिनिमम तो नहीं कर सकते, जीरो मिलता है क्योंकि मिनिमम में माइनस वगैरह जाती है, तो जीरो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कब मिलता है जब एक दूसरे के A और E दोनों एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्लियर हुआ, एक से मैक्सिमम हो गया। तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखते हैं, लिख दीजिए इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। ठीक है। तीसरा पॉइंट इफ थीटा इक्वल टू जीरो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते जाइए आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। ओके, क्लियर होगा थ्री पॉइंट्स। और अगर ऐसा नहीं है तो इसकी वैल्यू, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो हो सकती है। ऑल थ्री कंडीशन आर पॉसिबल, ऑल थ्री
condition are possible for electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो. मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विल बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से इतने पॉइंट हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और इसका यूज हम गॉस लॉ में करेंगे, डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे. पर खाली डिफाइन करने के लिए अगर हम कहें तो गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है